development, technological development. And Indus Valley civilization is one of the ancient civilization of the world. So India has lot of importance geographically, history in the world. Now, in this lesson, we will study about the location first. Location of India. Come to this topic, location. In location, you study about the latitudinal and longitudinal extension of the country. So first see here, India is a vast country lying entirely in the northern hemisphere. Northern hemisphere means north of equator. Which line is equator? This broken line. This broken line is line of equator. This is 0 degree. This side it is written 0 degree latitude. You are seeing here. So India is completely in the northern hemisphere, north of the equator. This is the position of India. So India is northern hemisphere. Then its latitudinal extent is 8 degree 4 minute north to 37 degrees 6 minute north. 8 degree 4 minute north to 37 degrees 6 minute north. Right? So 8 degree 4 minute north is this line, just at Kanyakumari. Kanyakumari is the last, at the end point of the Indian mainland, Kanyakumari. So 8 degree 4 minute north latitude is the latitude drawn which passes through Kanyakumari. क्लाइमेट ना सेकेंड लेसन, ये हम लोग का सेकेंड टर्म का पोर्शन है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा अभी रुक लेते हैं, ठीक है ना, अभी तुरंत पढ़ाने की जरूरत नहीं है। पहले हम लोग ये फर्स्ट टर्म का ही थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, और सेकेंड टर्म में भी ना देखो ज़्यादा लेसन अब बचा ही नहीं, डिलीट हो गया वो पॉपुलेशन is a big lesson which is deleted, and now we have to study only 2 lessons for the second term, that is climate and natural vegetation. Climate is a big lesson which will take a lot of time, at least 2 weeks, minimum 2 weeks, and vegetation is not so long, so it will also take 1 week. And then we shall have the revision work of those lessons also, because we are having sufficient time. Okay, so that's why I am revising first lesson today. So we are talking about the latitudinal extent. This from Kanyakumari, the latitude passes. Latitude is a horizontal line. Latitudes are parallel to line of equator. So latitudes are drawn from west to east, you can say, or east to west. It is parallel line. Latitudes are parallel line which are parallel to the equator, and just north of this equator lies the 8 degree 4 minute north latitude, which passes through Kanyakumari of India. And now come to this end point in the north. Are you seeing this pointer? Pointer is visible in your mobile? Yes, ma'am. Okay. तो पॉइंटर से देखो यहाँ पे, ये जो कश्मीर का बॉर्डर है, नदर्न बॉर्डर, एक्सट्रीमली नदर्न बॉर्डर, तो यहीं पर कौन सा लैटिट्यूड होगा? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। जहाँ पे ये बॉर्डर एंड हो रहा है वहाँ पे कौन सा लैटिट्यूड होगा? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ये हो गया। अब देखें इस तरफ, कि इस तरफ ये लॉन्गिट्यूड कौन सा हो गया? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट to 97 degree 25 minutes. हाँ, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश एंड हो रहा है वहाँ पर कौन सा लॉन्गिट्यूड होगा? 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूड जो है वो पैरेलल लाइन नहीं होता है, जैसे लॉन्गिट्यूड क्या है, पैरेलल है, तुम किसी कहीं से कहीं डिग्री पे चले जाओ, all the latitudes are parallel line, but longitudes are not parallel line, because all the longitudes are joining towards the pole. You are seeing here how longitudes are joining towards the pole. The longitudes are becoming closer and closer, and they will come to one point to join. All the longitudes join at North Pole, and all the longitudes join at South Pole. That's why the difference between two longitudes goes on
Are you seeing this? The distance between longitude on equator is more, but as you move towards south, the distance between two longitudes goes on decreasing and decreasing, and last it joins at a point on south pole here. In the same manner, it joins on north pole. So all the longitudes join at North Pole and South Pole. So longitudes are not parallel line. The distance between two longitudes goes on decreasing as we move north or south from the equator. Have you understood? Yes, ma'am. ऐसे ही समझते चलो. फिर हम लोग अब इधर देखें, सेकेंड कॉलम में आ जाओ. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ. ये देख रहे हो, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स. है ना. अब तुमको मैप में ये देखना है कि जो लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो कौन कौन से स्टेट से होके क्रॉस कर रहा है. तो तुम एकदम वेस्ट से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल. हाँ, ऐसे सीक्वेंसली बोलेंगे एकदम वेस्ट करते हुए ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे. तो फिर से सुनो. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. एकदम एक्सट्रीम ईस्ट में जाएंगे तो 2 स्टेट और हैं, त्रिपुरा एंड मिजोरम. तो काउंट करो कितने हो गए. 1 2 3 4 5 6 8 स्टेट्स through which the tropic of cancer passes. इन 8 स्टेट के नाम याद रखना. वन वर्ड आंसर होता है ना, उसमें कभी कभी दूसरे स्टेट का नाम देख लिखा रहेगा कि ये स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास है ना. तो इसको तुमको ये 8 का नाम पता रहेगा तब ना तुम गलत चीज को ढूंढ पाओगे कि कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है. गुजरात. तो जिन स्टेट से होके पास करता है वो हो गए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड. समझ गए. तो ये स्टेट्स के नाम. हेलो और फिर देखो कि यहाँ क्या लिखा है कि टू द मैम साउंड नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा है. मैम आ रहा. कुछ बच्चों को तो आ ही रहा है. तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है. यहाँ से देखो. टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द लैंड lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Islands in Bay of Bengal, Arabian Sea respectively. ठीक है ना. बंगाल में है और इसमें है अरेबियन सी में. अब यहाँ पर एक और बात देखने लायक है कि जो इंदिरा पॉइंट का क्यों नाम लिया जा रहा है, क्योंकि इंदिरा पॉइंट जो है वो submerged into वहाँ पे लैटिट्यूड जो है in 2004. लैटिट्यूड क्या है तो मैप में देख के बताओ. व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ इंदिरा पॉइंट. इंदिरा 6 minutes 45 minutes. हाँ, एक जो मैप है वो कौन से पेज में मैप है बताओ. पेज नंबर 3. हाँ, यहाँ देखो ये जो मैप है ये लास्ट आइलैंड देखो. ये लास्ट आइलैंड देखो. ये है इंदिरा पॉइंट है ना. तो इंदिरा पॉइंट में लैटिट्यूड कितना हो गया 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. एन यहाँ लिखना होता है. एन मतलब नॉर्थ.
इक्वेटर के नॉर्थ में है ना, इसलिए एन लिखना बहुत जरूरी है। और ये क्या हो गया, कन्याकुमारी में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो कन्याकुमारी, मैम 6.4 डिग्री साउथ में कम होगा। हाँ ये पॉइंट नहीं बोलते, 6 डिग्री बोलते हैं, है ना, 4 मिनट नॉर्थ, एन लिखेंगे। यहाँ पर भी एन लिखेंगे, यहाँ पे भी एन लिखेंगे, और यहाँ कन्याकुमारी के पास भी ये इस लैटिट्यूड पे भी क्या लिखेंगे, एन। तो इससे क्या पता चलता है कि जो इंडिया का मेन लैंड है ना, उसका जो सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। लेकिन जब आइलैंड की बात करें, अंडमान निकोबार की, तो इससे भी थोड़ा और साउथ तक ये जाता है, मतलब इसका लैटिट्यूड हो गया 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो एग्जाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडियाज मेन लैंड। अगर मेन लैंड रहेगा ना तो तुम ये कन्याकुमारी वाला यहाँ वाला लैटिट्यूड लिखोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये रहेगा कि व्हाट इज द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडियन यूनियन, तो इंडियन यूनियन में तो अंडमान निकोबार भी आ गया, तो यूनियन में तुम फिर ये लैटिट्यूड लिखोगे। 6 डिग्री 4 याद रहेगा ना तुमको? हाँ, यस सर, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है। इस नॉर्दर्न ग्रुप को कहते हैं अंडमान ग्रुप, और इसके बाद वाला ये जो सदर्न ग्रुप है इसको क्या कहते हैं, निकोबार ग्रुप। निकोबार। और बीच में ये जो सी है, दोनों ग्रुप के बीच में ये सी है ना, तो इसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। इसका क्या नाम पड़ा है, 10 डिग्री चैनल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है ना। 8 डिग्री और 12 डिग्री के बीच में यहाँ पे कौन सा लैटिट्यूड पड़ेगा, बोलो? 10 डिग्री। ये क्या है, 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है यहाँ पर, 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ा है, 10 डिग्री चैनल इसका नाम पड़ा, ठीक है। तो इसी में और हम लोग देखें थोड़ा सा कि ये जो है लैटिट्यूड तो तुम देख लिए, अब ये लॉन्गिट्यूड देखो। ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट, ये कैसा है, ऐसे स्लांटिंग लाइन है, देख रहे हो, ये ऐसे स्लांटिंग लाइन जा रहा है। क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूड तो पैरेलल लाइन है नहीं, ये एंड में तो नॉर्थ पोल में जाके सारा मिल जाता है। इसलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में जितनी दूरी है वो आगे बढ़ते हुए घटते चले जाएगी। यहाँ पे घट के इतना हुआ, फिर इससे आगे बढ़े तो घट के इतना कम हो गया, इससे आगे बढ़े तो घट के और इतना कम हो गया। तो जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे ना, 2 लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी घटते जाती है। सो लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल लाइंस, longitudes are decreasing, the distance between 2 longitudes are decreasing as we move towards the poles. समझ गए? तो ये गुजरात के एकदम वेस्टर्न बॉर्डर से ये लाइन जा रही है, तो इसको कहते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड तुम इस मार्जिन के अंदर बस इतना ही दूर तक दिखा सकते हो, क्योंकि ये फिर ऐसे स्लांटिंग जा रहा है, ऐसे बाहर निकल जाएगा, है ना, इस मार्जिन से बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए इसको स्लांटिंग में हम ऐसे ही दिखाएंगे। तुम लोग भी अपने मैप वर्क में इसको ऐसे दिखा लेना, इस लॉन्गिट्यूड को, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये कौन सा लाइन है, ये 97 डिग्री 25 मिनट। तो इसको ना मैप में तुमको अलग से ड्रॉ करना है, उसको तुम यहाँ ड्रॉ करोगे। देखो ये लाइन जो पहले से ड्रॉ किया गया है वो 96 डिग्री का लाइन है, और तुम्हें क्या ड्रॉ करना है, 97 डिग्री 25 मिनट। तो तुम इसको यहाँ पे ड्रॉ करोगे, ठीक है। ऊपर से देखो, ऊपर इसके मार्जिन पे देखो, यहाँ पे है ना 96 डिग्री ईस्ट, तो तुमको 97 डिग्री 25 मिनट के लिए यहाँ पे स्केल रखना होगा, यहाँ स्केल रखना, और यहाँ से ऐसे स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करना जो कि अरुणाचल प्रदेश को टच करते हुए ऐसे जाएगा। स्लांटिंग लाइन 96 के बाद होगा 97 डिग्री यहाँ से, ठीक है। अब ये मिनट क्या है, बोलो, तुमको पहले भी बताए थे। सनराइज आफ्टर सन, नहीं, पहले वो चीज बताओ कि 1 डिग्री
1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स। ठीक है, 1 डिग्री को अगर सब डिवाइड करते हैं तो उसके सब डिवीजन को क्या कहते हैं, 60 मिनट्स कहते हैं। और 1 मिनट को और भी फर्दर सब डिवाइड करेंगे तो वो 60 सेकेंड होगा। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 1 मिनट टू 60 सेकेंड्स। 60 seconds. ठीक है, तो ये तो हो गया टाइम का डिफरेंस, टाइम का डिवीजन कि 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट, इसीलिए ये कितना लिखा है 97 डिग्री 25 मिनट। मतलब उस 1 डिग्री का सब डिवीजन 25 जो है वो है इंडिया के इधर एक्सट्रीम ईस्टर्न बॉर्डर पे ये लाइन आती है लॉन्गिट्यूड की, जिसका नाम है कितना 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, अब हमको देखना है कि ये यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रीम वेस्ट और एक्सट्रीम ईस्ट में कितने डिग्री का अंतर है। तो ये अंतर कैसे निकालते हैं, माइनस कर लेते हैं। 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 68 डिग्री 7 मिनट कर लेते हैं। ठीक है ना, और तुम जब माइनस करोगे तो 29 डिग्री और कुछ मिनट आता है माइनस करने पे। हाँ, तो माइनस करके दिखाओ कितना आ रहा है, 68 डिग्री और 7 मिनट। 25 मिनट के नीचे आप 7 मिनट लिखे तो कितना बच गया, 18 मिनट बच गया, है ना। और 97 में से 68 माइनस किए तो बच गया 29 डिग्री, तो 29 डिग्री 39 degree 18 minutes. हाँ, तो इसको क्या कहते हैं ना कि राउंड फिगर में 30 डिग्री मान लेते हैं। तो क्या बोलते हैं कि इंडियाज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज 30 डिग्री। समझ गए, 30 डिग्री डिग्री में अगर देखें तो ये 30 डिग्री है। अब देखो यहाँ ये जो ऐसे स्लांटिंग लाइन ड्रॉ किया हुआ है ये किलोमीटर का लाइन है ना, इसको डिग्री से कंफ्यूज मत करना। ये क्या लाइन, दूरी दिखाया गया है कि यहाँ गुजरात के बॉर्डर से लेके अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर तक अगर दूरी को मेजरमेंट करते हैं किलोमीटर में तो कितना किलोमीटर आता है, बोलो। 2933 kilometer. हाँ, और डिग्री में कितना आएगा, 30 डिग्री। 30 degree. डिग्री में आता है 29 डिग्री मिनट, जिसको राउंड फिगर में हम क्या 30 डिग्री कहते हैं। 30 degree. हाँ, तो और किलोमीटर में मेजर करते हैं तो कितना आता है 2933। 933 kilometer. ये किलोमीटर में है और वो डिग्री का अंतर हो गया 30 डिग्री, और किलोमीटर का अंतर कितना हो गया 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब यही चीज हमको नॉर्थ से साउथ की तरफ भी देखना है। अब देखो कि नॉर्थ के साउथ की मतलब कश्मीर बॉर्डर से लेके कन्याकुमारी बॉर्डर तक ये दूरी किलोमीटर में कितना है, बोलो। 214 kilometer. ये दूरी किलोमीटर में हो गया। ठीक है, फिर यहाँ वही इधर का जो लैटीट्यूड है वो 37 डिग्री है। 37 डिग्री 6 मिनट में से तुमको क्या माइनस करना है, 8 डिग्री 4 मिनट माइनस करना है। 29 degree 2 minutes. हाँ, आया ना 29 डिग्री 2 मिनट। तो कहने का ये मतलब है कि ईस्ट से वेस्ट या नॉर्थ से साउथ दोनों ही डिग्री में जो डिफरेंस है वो लगभग बराबर है ना। एक का आ रहा है 29 डिग्री 18 मिनट और दूसरे का आ रहा है 29 डिग्री 2 minutes. मिनट आ रहा है, तो बराबर है ऑलमोस्ट। इसलिए हम इसको क्या मान के चलते हैं कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल और लैटीट्यूडनल दोनों डिफरेंस कितने का है, 30 डिग्री का है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाए तो 30 डिग्री का डिफरेंस है और वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाए तो भी 30 डिग्री का डिफरेंस है। दोनों ही डिफरेंस बराबर है, लेकिन जब किलोमीटर में मेजर किया गया तो क्या देखा गया कि वेस्ट टू ईस्ट जो है वो 2930 kilometer और इधर 3214 kilometer. हाँ, वेरी गुड। अब इसी पे एक क्वेश्चन है लेसन के अंदर, जानते हो क्या क्वेश्चन है कि व्हेन द डिफरेंस ऑफ डिग्री इज सेम व्हाई द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इज मोर इन किलोमीटर, व्हाई द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इज मोर।
ठीक है, आर यू लिसनिंग? Yes, ma'am. ये क्वेश्चन तुम्हारे नेक्स्ट पेज में पैराग्राफ में ही, मतलब फर्स्ट पेज के नेक्स्ट वाले पेज में पैराग्राफ में ये क्वेश्चन बीच में दिया हुआ है। पेज नंबर 2 में, पेज नंबर 2 में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि look at figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. मतलब नॉर्थ साउथ एक्सटेंट किलोमीटर में ज्यादा है और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट किलोमीटर में कम है ना? ईस्ट वेस्ट कितना है? 2933 किलोमीटर ही है। और नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितना है बोलो? 3,214 kilometers. 14 kilometers. इसलिए ये क्वेश्चन उठना बहुत ही नेचुरल है कि जब डिग्री में दोनों बराबर है तो किलोमीटर में भी बराबर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि लैटिट्यूड तो पैरेलल लाइन होते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड आर नॉट पैरेलल लाइन। एज वी मूव टुवर्ड्स पोल्स, द लॉन्गिट्यूड, द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। यही इसका आंसर है। और लैटिट्यूड्स आर पैरेलल लाइंस बट लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल लाइन। इंडिया के केस में हम ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी कम होती जाती है ना? और इससे नॉर्थ की तरफ जैसे बढ़ेंगे तो इसी वजह से क्या है कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट कम हो जाता है और नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, पेंसिल से ना अपने बुक में एक जगह लिख लो कि 1 डिग्री किलोमीटर में कितना होता है। लिखो 1 degree equals to 111.32 kilometer.